السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیکٹ پریکشا اسٹڈی چینل پر سواگت ہے، استقبال ہے۔ سی ٹیٹ دسمبر 2024 اردو پیڈاگوجی کے لیے دوستو یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ جو PYQ 2011 سے لے کر 2024 کا جو سیریز چل رہا ہے، یہ 60واں ویڈیو ہے دوستو۔ ابھی تک اگر آپ پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر جا کر کے ضرور دیکھ لیجئے دوستو۔ یعنی آخر ٹائم میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہم لوگ کلاس کی طرف بڑھیں گے۔ تیاری کو کیسے بہتر کریں گے دوستو، یعنی تیاری اگر ابھی تک آپ نہیں کر چکے ہیں، یعنی بالکل بیسک بھی آپ کی تیاری نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو PYQ جو بھی چینل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے۔ اور اس سے اہم گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ دوستو آپ کا جو ہے یعنی ابھی تک اگر آپ تیاری نہیں کیے ہیں تو ایک تھیوری کلاس دوستو اگر آپ لوگ کمنٹ کیجیے گا دوستو، ضرور اگر کمنٹ کیجیے گا کلاس ختم ہونے کے بعد کہ آپ لوگوں کو تھیوری کلاس چاہیے، یعنی جتنے بھی ٹاپک ہے 7 یا 8 ٹاپک ہے، ایک ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کرائیں گے۔ جو تھیوری ہینڈ رائٹنگ نوٹس سے لکھا ہوا ہے اس کو ہم بہت جلد کمپلیٹ کرا دیں گے۔ اس سے پہلے گزارش یہی رہے گی آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا، تبھی جا کر کے ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو کلاس کی ضرورت ہے۔ تو میں تھیوری کلاس یعنی جتنے بھی کیا ہے ٹاپک ہے، سارا ٹاپک ایک ہی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ویڈیو لمبا آئے گی لیکن سارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور دوسرا دوستو 2011 سے لے کر کے 2024 تک کا جو یہ سیریز چل رہا ہے، یہ 7واں سیریز ہے، 6ٹھا سیریز اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوستو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ہی ویڈیو ایسا لائیں گے، اگر آپ لوگ پیار بناتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا اور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو کلاس کیسا لگ رہا ہے۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ ضرور اگر 1 منٹ نکال کر کے کمنٹ کرتے ہیں تو 1 منٹ سے ہمارا بہت ہی من کرے گا اور محنت کرنے کا اور لگن کرنے کا من کرتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور 2011 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی PYQ ٹاپک وائز پوچھا گیا ہے یا ایئر والا جتنے بھی پوچھا گیا ہے تو اس کو ہم ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے۔ میراتھن اس کا بھی لگائیں گے، یعنی میراتھن اسی مہینے دسمبر یعنی نومبر ہی میں لگائیں گے۔ 10-15 دن پہلے ہی سارا کلاس آپ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے گزارش یہی رہے گی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو ایک غلطی بچہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر اردو لینگویج 1 لیے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یعنی 91 سے آپ کو 120 تک ہی حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ اگر لینگویج 2 اردو لیے ہیں تو 121 سے حل کریں گے، یا کسی بھی لینگویج کو آپ رکھے ہیں، کیونکہ یہ بھی جاننا بہت اہم ہے۔ کیونکہ اگر آپ تیاری ہی کرتے رہیں گے، اگر اس کو نہیں سمجھیے گا تو آپ کو یعنی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ آپ کا سب سارا سوالات بننے کے باوجود بھی آپ کا نمبر نہیں آ پائے گا، کیونکہ الٹا پلٹا کام کر دیجیے گا۔ اسی لیے یہاں سے ڈائریکٹ ہم لوگ پڑھتے ہیں 91 سوالات سے، اس کو دیکھیے گا، پڑھیں گے، یعنی نیچے دیے ہوئے سوالوں کو پڑھیے۔ اور اگر یہ جاننا ہے کہ یہ کس سال کا ہے تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ہم آخر میں اس بات کو ضرور بتلائیں گے۔ نیچے دیے ہوئے سوالوں کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے، ٹھیک ہے۔ کسی متبادل کا انتخاب کیجیے۔ مثال سے مماثلت رکھنے والی حکمت عملی کا انتخاب کیجیے۔ یہ آپ کا سوالات ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس زبان کے استعمال پر توجہ مرکوز کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا آپشن کو دیکھیے گا، تقلید زبان کی یاد کر لینا، ذہن نشین کرنا، دہرانا، از خود نگرانی۔ دوستو اس کو دیکھیے گا، تقلید کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں کی گئی ہے، اور زبان کو یاد کرنے تو آپ کا نگیٹو ہے، یہ دہرانا ہے۔ آپ ڈائریکٹ دیکھیے یہی آپ کا آپشن بچا، یعنی از خود نگرانی کرنا، یعنی 91 کا آنسر آپ کا 4 ہو گیا۔ دوستو ذرا ہم لوگ اس کو اسپیڈ سے بھی کریں گے اور اچھا بھی کنسیپٹ کلیئر کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوستو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ لائک ضرور کیجیے گا، لائک
करने में आपको पैसा वैसे नहीं लग रहा है, बल्कि आप लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। क्या है? दूसरी तालिब इल्म का एक लड़का क्या करता है? गाना गाता है। सर, कंधे, टखने और अंगूठे गाना गाते हुए वह जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। वह उस्ताद की हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है। यानी देखिएगा सवालात क्या कह रहा है, गाना गा रहा है और कंधे, सर और घुटना पूरा उसका जिस्म जो है पूरा हिल रहा है, हरकत कर रहा है। तो ये कौन सा होगा? इस्तिफ़ाइयत पसंदी, समई लिसानी, तरसीली ज़बान की तदरीस। दोस्तों इसमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। देखिए सर, कंधे, टखने, यहाँ देखिए जिस्मानी आज़ा, यहाँ भी है कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी जिस्म के ही थ्रू वो क्या कर रहा है? वो हरकत कर रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 93 का देखिएगा तलबा साबिक़ा इकाई से मुताल्लिक़ लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी ग्रुप में तैयार कर रहे हैं सवालात को। 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। किसकी मिसाल है? यानी ग्रुप के यहाँ कहा जा रहा है। क्या है? यानी आपको सवालात को भी पकड़ना है और आंसर को पकड़ना है। फिर दूसरे ग्रुप, ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ भी ग्रुप तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अगला देखिएगा हम जुल्ला का अंदाज़ क़द्र, अज़ खुद अंदाज़ क़द्र, फीडबैक, पढ़ना का अंदाज़ क़द्र। देखिएगा दोस्तों यहाँ आपका 93 का देखिएगा हम जुल्ला का अंदाज़ क़द्र होगा, क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप में जो बच्चे पढ़ते हैं वो यानी ग्रुप ही के ज़रिए देखिए 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो ग्रुप में तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे? ग्रुप में तैयारी करेंगे। जो होगा हमजुल यानी एक ही उम्र का, एक ही क्लास का बच्चा होगा जो आपस में मूल्यांकन भी करेगा, उसमें मेहनत और लगन करेगा, वही आपका आंसर यहाँ करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। आंसर नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों अगला सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब उस्ताद 94 सवालात की तरफ बढ़ते हैं, जब उस्ताद इसको ज़रा छोटा करते हैं, जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है, क्या कर देता है? कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी करती हुई होती है, अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में क़यास करें। आमोज़गारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। दोस्तों इसको ज़रा हम लोग बड़ा करके अच्छा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है यहाँ दोस्तों? जब वो उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे, क्या है? बच्चे को लफ्ज़ मुहावरे यानी इसके बारे में क्या कहता है? तलबा कार्ड पर लिखने या लफ्ज़ के मुहावरे के बारे में क़यास करता है। तो ये कौन सा सवालात होगा? देखिए इसमें देखिएगा इसको छोटा करते हैं। जब मैं हुर्की तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। ठीक है। जब मैं देखता हूँ कि ज़बान को सही से याद रखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही याद रखता हूँ, जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को ज़हन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। यहाँ आपका 94 का देखिएगा दोस्तों, यानी इसमें अगर आप देखिएगा सब में याद करना अगर आ रहा है, याद करना आ रहा है। जब मैं हुर्की तौर पर शामिल रहता हूँ, हुर्की जब समझ रहे हैं, पूरी अपनी हरकत और जहन पूरा एक्टिविटी के साथ उसमें शामिल रहता है तो ज़बान को सही से याद रख पाता है। ठीक है। जब मैं देखता हूँ ज़बान को सही से याद रखता हूँ, ये देखना एक ही पक्ष की बात कर रहा है। जब मैं सुनता हूँ एक ही पक्ष की बात कर रहा है। जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को एक ही पक्ष की बात कर रहा है। इसमें जो हुर्की है इसमें तमाम पक्ष की बात हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 फर्स्ट यानी सही हो जाएगा। 95 का देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा कथन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अब सीटेट में उर्दू वाला में भी कथन वाला क्वेश्चन पूछने लगा है। दूसरी सब्जेक्ट में भी तो बहुत ज़्यादा है, उर्दू में भी 2-3 सवालात कथन वाला पूछा ही जा रहा है। 95 स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे, क्या है? स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपने उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। दलील लिसानी व सकाफ़ती तनाव के बाइस वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं।
ये आप देखिएगा इसका ऑप्शन है अलिफ गलत है और लेकिन बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही है और अलिफ की सही तौज़ीह है। अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ीह नहीं है। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। इसमें देखिएगा यहाँ आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? पहला आपका सही होगा दावा, अलिफ जो है ये सही होगा। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक क्या है, अपने उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। यानी अपने उम्र के एतबार से अपनी ज़बान पर पकड़ रखता है, अपनी ज़बान पर महारत हासिल किया हुआ रहता है। यही आपका सही है। लिसानी व सक़ाफ़ती तनाव के बायस वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाता। देखिए इसमें अगर कर पाता तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं आया है इसीलिए आपका ये सही नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा अलिफ। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देखिएगा कितना 95 का देखिएगा दोस्तों, 95 का आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलिफ सही है लेकिन बा गलत है, यानी फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये करना है। इसमें हल करने की ये है कि आप देखिएगा इसमें दोनों में से कौन आपको ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लग रहा है। अगर दोनों ही ठीक लग रहा है तो दोनों टिक कीजिएगा, अगर एक अच्छा लग रहा है तो आपको एक टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 95 का आपका सवालात हल हो गया। पाँचवीं जमाअत का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में अलग अलग अंदाज में बात करता है। ज़बान की उस खुसूसियत को क्या कहते हैं? यानी 5वीं क्लास के तलबा है माजिद जिसका नाम है, वो क्या कर रहा है? अपने उस्ताद और दोस्तों से अलग अलग 2 साल के बच्चे से भी, यानी छोटे जो बच्चे हैं उससे भी अलग अलग लैंग्वेज पर बात कर रहा है। तो ये आपका कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट है बोलने का अमल, फितरत पसंद, माविनियत, रोज़मर्रा और मुरवज ज़बान। आपको देखिएगा दोस्तों इसमें रोज़मर्रा आप जानते हैं कि ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी ये सब आप देखिएगा ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे से जो मुख्तलिफ अंदाज पर बात कर रहा है या दोस्तों से या उस्ताद से, ये रोज़ाना ज़िंदगी की चलती घड़ी जो है हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ चल रहा है और हमेशा वो अपने रोज़ में दैनिक जीवन की तरफ वो अपना क्या कर रहा है, दैनिक जीवन जिसको बोलता है ज़िंदगी गुजारने की जो है तरीक़ा, और उसी से वो बात कर रहा है वो आपका होगा 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवालात नंबर 97। सवालात ज़रा बड़ा है, इसको देखिएगा। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है। क्या है? एक माँ है, देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना। क्या है? कभी नहीं सुना। वह तज़ब्ज़ुब में पड़ जाती है, ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाती है। चाहती है कि ऐसा कैसा हुआ कि वो अपना भाई और बहनों से नहीं मिला बल्कि अलग बातें कर रहा है, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। उसका यह मानना किससे मुताबिक रखता है? ये आपका कहने का यही है कि वो देख रहा है कि अपने किरदार और ज़बान और भाई बहन से बच्चे सीख कर ज़बान बोलता है, लेकिन वो अलग अलग ही स्टाइल से बात कर रहा है। एक ऐसी लिसानियत है, मवाक़िमियत पसंदी है, किरदारियत पसंदी है। देखिएगा दोस्तों 97 का आपका आंसर आपका हो जाएगा किरदारियत पसंद है। इसलिए किरदार पसंद होगा दोस्तों, ये अपने किरदार के मुताबिक क्या कर रहा है, किरदार, यानी ये आपका सही यही हो जाएगा, क्योंकि ये बहु लिसानी नहीं हो जाएगा, कसीर लिसानी नहीं होगा, और क्योंकि अपने भाई बहन से नहीं सीख रहा, ये आपका किरदारियत पसंदी हो जाएगा। बच्चे ने 98 बच्चे में आगे चलकर अकादमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख़वानदगी मतलब पढ़ना, ख़वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़ारिग पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं? नई ख़वानदगी, नई हल, नई दरसियात, नए अनासिर। यह आपका 98 का देखिएगा आंसर आपका दोस्तों नई ख़वानदगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? देखिए यहाँ पर ख़वानदगी आ रहा है, यहाँ पर भी नई ख़वानदगी आ रहा है, कहीं पर भी नहीं है। ये भी आप इसको टैग वर्ड के थ्रू आप हल कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपको बहुत ही आसानी से आपके टाइम भी बच जाएगा। दादी
99 को देखिएगा। 99 दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करता। क्या दादी माँ जो है, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे की जो दादी होता है, आपके भी अगर दादी होंगी हयात से तो आपको भी बच्चे में क्या क्या होगा, किस्से कहानी। बूढ़ी होती है, बूढ़ी दादी होती है तो क्या करती है, किस्से कहानी सुनाती है। वही ये सवालात में पूछा गया है। वो बच्चों को नई किताबों और ख़यालात से मुतारिफ़ भी कराती है। किस्से कहानी भी सुना रही और नई जो किताबों हैं, ख़यालात जो है उसको भी तारुफ़ करा रहा उससे, और बच्चे भी उस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं, बच्चे भी क्या करता, पूरे तरीके से उसमें पूरे तरीके से सुनता है। बल्कि आज के बच्चे को देखिएगा तो ज़्यादातर वो मोबाइल की तरफ, अगर कोई कुछ बोलता है तो मोबाइल की तरफ ज़रा ध्यान देता है। ठीक है, इसके सवालात का आपका जो आंसर सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानियाँ, मकालमा, ये सब सारा चीज़ें आपका आएगा किस में आएगा, बुलंद ख़वानी में नहीं आएगा, मिसाल क़िरात में नहीं आएगा, मुश्तरिका में नहीं आएगा। ये आपका होगा मुकालमाती क़िरात, यानी मुकालमे के ज़रिए बच्चे को ये बात, अपना किस्सा कहानी, सारा चीज़ किस्से कहानी, ये सब कितने इसमें आ जाएंगे, ये आएंगे मुकालमाती क़िरात में आ जाएंगे। 99 का आपका ऑप्शन 4 तो सही हो गया। क़िरात की तदरीस का वह तरीक़ा जो हरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है, बच्चों को बताता है कि मजमूई क़िरात शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, हरूफ और सूतियाँ जैसे ये कौन सा होगा, साख्तियाती तरीक़ा, ऊपर से नीचे का तरीक़ा, नीचे से ऊपर का तरीक़ा। मजमूई तरीक़ा दोस्तों, ये मजमूई तरीक़ा भी नहीं होगा, आपका जो होगा साख्तियाती तरीक़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साख्तियाती तरीक़ा हो जाएगा, क्योंकि हरूफ और सूतियों से बुनियादों से जुड़ी हुई है। अगर यही सूतियों और हरफों पे अगर आ गया तो समझिए मजमूई तरीक़ा हो जाएगा। ये आपका दोस्तों साख्तियाती तरीक़ा हो गया। 101 का देखिएगा दावा, ये भी आपका कथन वाला सवालात बहुत पूछा जा रहा है। इसको देखिएगा, सोती हिज्जे दुरुस्त, सोती मतलब दुरुस्त है, सूत्र मतलब आवाज़ होता है। हिज्जे की आमूजिश सलाहियत पर कदगन लगाता है। जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने ईजाद करदा हिज्जे को पढ़ते हैं तो दुरुस्त हिज्जे की आमूजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है। ये आपका आंसर दोस्तों, इसमें आप पढ़िएगा और लगाइएगा आंसर 101 का आपका कौन सा सही हो जाएगा। 101 का आप देखिएगा कौन सा आपका एकदम सही हो जाएगा। 101 का देखिएगा दोस्तों इसमें आप ज़रा देखिएगा कहाँ मिस्टेक इसमें गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ये साख्तियाती तरीक़ा नहीं होगा, बल्कि क़िरात के तदरीस का वो तरीक़ा जो हरूफ और सूतियों के बारे में कहा जा रहा है। हरूफ यानी सूत्र मतलब आवाज़ के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ आपका जो हो जाएगा यानी 100 का जो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, नीचे से ऊपर का तरीक़ा है, क्योंकि बच्चों को पहले हरूफ बताया जा रहा है, उसके बाद उसकी आवाज़ों के बारे में, जुमले के बारे में सारा चीज़ें बताए जाएंगे। इसमें किस में आएगा, ये इसमें आपका थर्ड ऑप्शन में आएगा दोस्तों। किस में आएगा, नीचे से ऊपर का तरीक़ा, वो हमसे ज़रा गलती हुई, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर के ज़रिए दोस्तों यही दिया गया है, ये भी ज़रा सही लग रहा था, लेकिन आपका बच्चे का ये जो बहुत ऑफिशियल आंसर दिया गया नीचे से ऊपर का तरीक़ा। ठीक है, अगर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जितने भी सवालात आपको बताया जा रहा है बिल्कुल सीटेट का ऑफिशियल आंसर की से बताया जा रहा है, आप बिल्कुल यकीन 100% कर सकते हैं, क्योंकि इधर उधर से उलूल जुलूल की तरह मैं कोई बातें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आप लोगों को मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। 101 का देखिएगा, सोती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमूजिश की सलाहियत पर कदगन लगा। ये तो सवालात पढ़ चुके हैं। अगला हम इसको देखिएगा 101 का कौन सा सवालात सही होगा। देखिएगा, अलिफ गलत है लेकिन बा सही है। क्या कह रहा है, अलिफ गलत है और बा लेकिन बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही है और बा अलिफ की तौज़ी है। अलिफ और बा दोनों सही है लेकिन बा और अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। इसमें देखिएगा कौन सा सही होगा, यहाँ सवालात को पढ़िएगा। यहाँ देखिए, सोती हिज्जे दूसरे हिज्जे की आमूजिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है।
जब छोटे बच्चे रवायती हिज्जे के बजाय अपने ईजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं होता है। ठीक है, जब छोटे बच्चे अपने ईजाद करता, क्योंकि बच्चे कुछ से कुछ, यहाँ आपका सही कौन सा होगा, अलिफ गलत है, क्या है, अलिफ आपका गलत है और लेकिन बा सही है। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका यानी फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ऑफिशियल सीटर की आंसर देखिए इसमें, जब छोटे बच्चे रिवायती समझ रहे हैं, हिज्जे के बजाय पढ़ते यानी रिवायत में मतलब पढ़ना, अपने ईजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं। अपना जो ईजाद कर रहा बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो कुछ भी ईजाद कर सकता है, वह लफ्ज़ को, सही लफ्ज़ को गलत भी बात बता सकता है। तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं होगा। ये दुरुस्त हिज्जे जो है उसके सलाहियत पर कदगन क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अपने ईजाद करदा, वो अपना ईजाद कर रहा है ख़ुद से। अगर वो ईजाद करेगा तो उसका सलाहियत कहाँ बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। 102 का देखिएगा, इधर चलते हैं। 102, नई ज़बान के आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। क्या है, नई ज़बान के आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस बहुत से तलबा में अक्सर एतमादी की कमी होती है। दोस्तों जी हम हल कर रहे हैं, ये पैडागोजी है, क्योंकि पैडागोजी इसमें इक़्तिबास बाद में दिया गया है। फर्स्ट में आपका पैडागोजी ही इकोनॉमी से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नई ज़बान के आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस बहुत से तलबा में अक्सर एतमादी की कमी होती है। उस कमी पर काबू पाने का एक तरीक़ा क्या है, जहाँ गलतियाँ सरजद हो उनकी इस्लाह करें। तलबा क्लास में बुलंद ख़वानी करें, क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियाँ अंजाम दें जिनमें ज़बानी ताअम्मुल शामिल हो। कोलन्स की मदद से बोलने का खुसूसी तिब्बी इलाज करें और बोलने की मशक़ करें। इसमें ज़रा इसको छोटा करते हैं, आप इस ऑप्शन को पढ़िएगा। यानी नई ज़बान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस बहुत से तलबा, ठीक है, इसमें आपका जहाँ होगा ख़ुद एतमादी की कमी हो जा रही है। दोस्तों उसको एतमादी आपको करना है, उसको भरोसामंद अगर यकीनी दिलाना है तो उसको क्या करेंगे, क्लास में ऐसे खेल की शक्ल में सरगर्मियों का अंजाम देंगे जिनमें ज़बानी ताअम्मुल शामिल हो। ज़बानी क्या होगा, ताअम्मुल समझ रहे हैं, समाजी ताअम्मुल जिसको बोलते हैं, मिलाओ जुलाओ बातचीत, ये आपका हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ये आपका आंसर आपका 3 आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। 103 का देखिएगा, तीसरी जमात के उस्ताद आमोज़गारों को नए अल्फाज देता है। दर्ज झैल में से कौन सा तरीक़ा नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मुअस्सिर होगा। तीसरी जमात को उस्ताद क्या कर रहा है, बच्चे को नए अल्फाज दे रहा है, तो कौन सा तरीक़ा सबसे बेहतर होगा। उस्ताद अल्फाज के मानी तख्त स्याह पर लिख दे और तलबा से उन्हें ज़बानी याद करना रहा। दोस्तों निगेटिव है, उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतज़ाद भी बताना चाहिए और उनकी ज़बान में मानी भी बताना चाहिए, इसको भी देखना गए। उस्ताद को अल्फाज के मुख्तसर तारुफ़ करवा देना चाहिए, मुख्तसर नहीं करवाना है, ये भी आपका निगेटिव। उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सयाक़ में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ आपका दोस्तों देखिएगा, यहाँ कहा जा रहा नए अल्फाज, ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जा रहा है। उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सियाक़ में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं। यानी सबक में जो सबक है, जो असबाक है, उसी के हिसाब से आपको क्या करना, बच्चे को मानी और अल्फाज को बताना है, तभी जा कर के बच्चे के जहन में घुसेगा। अगर बच्चे को नई मानी और लफ्ज़ नहीं आ रहा, पढ़ना भी नहीं आ रहा है, अब उसके हाई लेवल उसको बताइएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बगैर लान तान की ज़बान की आमोजिश होती है, क्या है, ज़बान की जो आमोजिश है वो क्या होती है, एक महारत है। ज़बान की आमोजिश मतलब क्या है, सीखना। ज़बान की सीखना क्या है, एक महारत है, इक्तिसाब है, हासिल अमल है, मा हासिल है। इक्तिसाब मतलब हासिल, अमल मा हासिल है। ठीक है, इसमें देखिएगा यानी ज़बान की आमोजिश एक क्या होता है, एक महारत होती है दोस्तों। यह फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। पढ़ने के तरीक़े, अलिफ, इसको देखिएगा, ये भी आपका कोट के जैसे मिलाया हुआ है। नंबर 1 पेश गोई, नंबर बा इस्तिंबाती अंदाज,
नंबर 5 सियाक से माना अख्ज़ करना। नंबर 5 गायर मुताला, अगले से गायर मुताला। नंबर हाँ जो है मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदेही, यानी कारी क्या करता है। यहाँ आप सवालात को पढ़िएगा और उसमें सवालात इसमें कूट के जैसे भरा हुआ है, उसको आप क्या कीजिएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा। यह आपका इसको छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही छोटा कर रहा हूँ। आप इसको देखने में ज़रा परेशानी होगी, लेकिन इसको देखिएगा कैसे आप बताइएगा इसमें सवालात आपका कौन सा सही होगा। सवालात आपका 105 का कौन सा सही होगा दोस्तों, कौन सा आपका सही होगा, ये आप देखिएगा। ठीक है, 105 का देखिएगा कौन सा आपका सही हो रहा है। इसको ज़रा बड़ा करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर दीजिएगा। कारी क्या कहता है, लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ़ के एहसासात का तयन करता है। नंबर 2 मतन के बाद हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। उन्वानात और तारुफ़ी जुमलों की मदद से मालूमात के तरतीब व तंजीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है। किसी मतन में ज़बान के बरतने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ करता है। मतन के मानी व मफ़हूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। मज़कूरा पढ़ने का तरीक़ा और कारी के मौजूदा अमल मिलाप कीजिए। ये आपको क्या करना है, मिलाप करना है कि कौन सा आपका सही हो रहा है। ये अलिफ़ ये क्या है, अलिफ़ है, जीम है, वाव है, हा है, यह आप इसको मिलान कर सकते हैं। 5 का आपका ऑप्शन दोस्तों आपका दूसरा आपका सही हो जाएगा, यानी अलिफ़ और बा और जीम और क्या है, हा। यानी अलिफ़ आपका 5 में मिलेगा, बा 1 में मिलेगा, जीम 2 में मिलेगा, 4 हा में मिलेगा। इसमें आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपका 2 सही हो रहा है। देखिएगा 2 में कौन सा आपका है, 2 में फर्स्ट में आपका है जो क्या है, अलिफ़ किस में है, अलिफ़ आपका देखिएगा अलिफ़ पेश गोई, ठीक है, वो आपका इसमें मिल रहा है। किस में मिल रहा है, अलिफ़, ये आपका 5 है। मतन के मानी व मफ़हूम को समझने के उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। ये आपका एकदम करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बहुत ही ये टफ सवालात उर्दू में पूछा जा रहा है दोस्तों, पहले इस तरीके के सवालात नहीं आती थी, इसे आप लोगों को ज़रा कमर कस के पढ़ना है ताकि हर तरीके के सवालात आपसे बन पाए। आपका यहाँ ऑप्शन जो होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, यहाँ ऑप्शन होगा दोस्तों, कौन सा होगा, यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर का। अगले सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, छठे सवालात की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस छठे सवालात में आपका दिया गया है वह क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें आपका इक़्तिबास दिया हुआ है। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप दो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पहले क्या कीजिएगा, इसको पढ़िएगा और उसके बाद डायरेक्ट आप फिर इक़्तिबास को पढ़िएगा, तो जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा इसको 10 मिनट में हम हल करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे साथ आप भी हल कीजिएगा, ताकि आपका जो है क्या होगा, आपका क्या होगा दोस्तों, आपका यानी स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना आपका बेहतर होगा। रेगिस्तानी पौधों के जिस्म में कैसे होते हैं, रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं, नोकदार कांटे वाले, मोटे रेशमे और फूले हुए, नकीले, खुरदरे और पतले होते हैं, खादर और बदनुमा होते हैं। अगले सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं, अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं, अपने जिस्म में कांटे और झाड़ियों को महफूज रखते हैं, अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़े महफूज रखते हैं, अपने जिस्म में ग़ज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। अगले सवालात की तरफ पढ़ते हैं। ये ज़ख़ीरा कब उनके काम आते हैं, रेगिस्तानी तूफ़ान के बाद काम आते हैं, गर्मी के मौसम में जब सूखने लगते हैं, ख़राब मौसम में जब ग़ज़ा और पानी की किल्लत होती है, गर्म हवा जब चलती है तब काम आता है। 108 का ये आप सवालात देख लिए होंगे। अगले सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यानी 9 रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जैसा मत में कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, फैले हुए छोटे होते हैं। ठीक है, अगला रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है, स्याही माइल हो जाता है, सुर्ख माइल हो जाता है, मट मीला हो जाता है,
कटती रंग का हो जाता है। 11 का देखिएगा, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से, पौधे में पानी की ज़ायद और मकदार और उसके पत्तों और फ़ज़ा में खारिज होते रहने की वजह से, पौधे में ज़्यादा पानी देने की वजह से, नंबर 4 पौधे में खाद और पानी देने की वजह से। यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आप देख सकते हैं। अगला, रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा उठाना चाहिए? जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करता है, कोई भी उनको छेड़ता नहीं है। वो तूफ़ान से महफूज रहते हैं, वो गर्म हवा से महफूज रहते हैं। अगला देखिएगा, एहसास की जमा क्या है? एहसासात। अगला देखिएगा, पढ़ेंगे, फ़ायदा का मुतज़ाद क्या है? ये मुज़िर है, फैज़ान है, नुकसान है, फैज़याब है। अगला देखते हैं दोस्तों, यानी 16 भी देखिएगा, शायर ने किस पर क़नाअत न करने की बात कही है? ये आपका किससे है? ये आपका क्या है? नज़्म से आपका है, ठीक है। आलिम रंग व बू, आलिम रंज व गम, आलिम मसरत व इंसबात, आलिम निशात व आलम पर। ये आपका 170 दिखेगा। शायर ने शाहीन के काम को क्या कहा है? दूसरे परिंदों से लड़ना, तन्हाई में बैठना, परवाज़ करना या पहाड़ों पर रहना। शायर किस में उलझ कर न कहने की बात कर रहा है? सुबह शाम की, रोज़ शब की, रंज व गम की, दुख व दर्द की। 119 का देखिएगा, जल्द से जल्द हम लोग हल करेंगे। अगर खोया गया एक तो क्या, इसमें खाली कौन सा है वो देखिएगा। 120 का देखिएगा, गम का मुतज़ाद क्या होता है? दोस्तों आप यहाँ तक जल्द से जल्द देख लिए होंगे। अब अगले सवालात के तरफ हम लोग फ़ौरन बढ़ते हैं और सवालात का जो है आप इसको पढ़िएगा एक मरतबा, यानी इक़्तिबास को एक मरतबा पढ़िएगा और उसके बाद सवालात को लगाइएगा। डायरेक्ट हम लोग इक़्तिबास की तरफ चलते हैं। यहाँ आपका इक़्तिबास है, कहाँ आपका? इधर आपका इक़्तिबास है, देखिएगा। ये हमारे साथ भी पढ़िए और इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको टिक करके आप फ़ौरन आंसर को खोजने की कोशिश कीजिए। यानी पूरे हमारी पौधे, ठीक है, पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, ठीक है, पौधे बहुत अहमियत रखती है। ये मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नश्मनुमा पाते हैं। अगला, रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे, रेशमेदार और फूले होते हैं। क्या होते हैं? रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे और रेशमी और फूलेदार होते हैं। रेगिस्तानी पौधे कैसे होते हैं आपका सवालात में आया हुआ था। आप क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़ज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। क्या करते हैं? अपने जिस्म में ग़ज़ा और पानी का ज़ख़ीरा भी रखते हैं, जो उन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। क्या लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़ज़ा और पानी की किल्लत होती है तो ज़ख़ीरा उनके काम आता है। यानी मौसम की किल्लत की वजह से उनके क्या होता है? ज़ख़ीरा काम आता है। ये सब आपका ठीक करने की ज़रूरत है। ज़ख़ीरा उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की ज़ायद मक़दार उसके पत्तों और फ़ज़ा में खारिज होती रहती है। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। ये पानी जो है जज़्ब कर लेता है और ठंडक एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिस्मत में छोटे हैं। तो क्या है? रेगिस्तानी पौधे क्या होते हैं? जिस्मत से छोटे, बल्कि ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनका रंग भी स्याही माइल हो जाता है। उसका दूसरा फ़ायदा यह होता है कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुँह मारने से गुरेज करते। जुगाली समझते जानवर, जंगली जानवर जुगाली करने वाले मुँह मारते हैं। ठीक है, आपका यहाँ तक आपका क्या हुआ? इक़्तिबास हम पढ़ लिए। डायरेक्ट अब हम सवालात की तरफ बढ़ेंगे और दोस्तों बहुत जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको टाइम को क्या करना, मैनेजमेंट करना है। तो इक़्तिबास या पद्यांश उर्दू हिंदी दोनों का अगर टाइम आप बचाते हैं तो आपके सवालात बिल्कुल आप सीटेट पास होइएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पे भी मेहनत करना है। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म कैसे होते हैं? वहाँ आप पढ़े थे, नोकदार कांटे वाले, मोटे और रेशमी और फूले हुए। ठीक है, क्या पढ़े थे? देखिएगा, आप पढ़े मोटे, रेशमीदार और फूले हुए होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे, रेशमीदार और फूले। एक बार तो आपको दिखा देता हूँ और जल्द से जल्द हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है रेगिस्तान पर जिसमें मोटे, रेशमीदार और फूले होते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते चलेंगे, दिखाएंगे नहीं, एक बार तो आपको दिखा दिए। रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखता है? यानी अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं? वो अपने जिस्म में रेशमेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं। वो अपने जिस्म में कांटे और झाड़ियों को महफूज रखते हैं। वो अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़े महफूज रखते हैं, बल्कि वो अपने जिस्म में ग़ज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। आंसर 4 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 107 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये ज़ख़ीरा कब
कब उनके काम आते हैं? रेगिस्तानी तूफ़ान के बाद काम आता है। गर्मी के मौसम में जब ये सूखने लगते हैं, ख़राब मौसम में जब ग़ज़ा और पानी की किल्लत होती है, ये आपका रेगिस्तानी यानी यही आपका काम आएगा, ये ज़ख़ीरा काम आएगा। आंसर आपका ठंड हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। 109 कितना ईजी से बहुत ही अच्छे स्पीड भी आपका हल हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, छोटे होते हैं, क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आप इक़्तिबास को पढ़ करके आंसर वहाँ से निकाल सकते हैं। रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है? स्याही माइल होता है, सुर्खी माइल होता है, मट मिला होता है, कटी रंग का होता है। 110 का देखिएगा दोस्तों, 110 सवालात को आप लोग देखिएगा। क्या है? 110 सवालात को आप लोग देखिएगा। आंसर आपका होगा स्याही माइल होता है। कैसा होता है? स्याही माइल होता है। 115 का देखिए, 111 दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज़्यादती की वजह से। पौधे में पानी की ज़ायद मकदार उसके पत्तों और फ़ज़ा में खारिज होते रहने की वजह से पौधे में ज़्यादा पानी। यह आपका आंसर का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 111 का देखिएगा, आंसर 2 आपका एकदम सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप उसमें इक़्तिबास में पढ़ चुके हैं। 112 का देखिएगा, 112 सवालात की तरफ हम लोग। रेगिस्तान के पौधे का कांटों के शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है? यानी जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं। ठीक है, क्या होता है? 112 का देखिएगा, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो क्या है, वो कांटे जो है, ये कांटों की शक्ल में जो रहते रेगिस्तानी पौधे का, वो जंगली जानवर जो है उसे मुँह नहीं मार सकेगा, गुरेज करते, उससे परहेज करते ताकि आपको भी खतरा हो जाए। यानी एहसास की जमा एहसासात, क्या है? एहसासात है। 113 का आंसर 2 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 114 सवालात की तब हम लोग इस पर से बढ़ते हैं। फ़ायदा का मतज़ाद होगा दोस्तों। फ़ायदा मतलब क्या होता है? फ़ायदा 14 का मुज़िर, फ़ायदा का मुज़िर, फ़ैज़ा नुकसान, क्या होगा? फ़ायदा का देखिएगा 113 का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। फ़ायदा का नुकसान होगा, बोलते हैं ना, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, यही दोनों। और भाषा आपकी लैंग्वेज चलता है, ये आम भाषा उर्दू में बोली जाती है। यानी 15 सवालात के तब हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं। 15 सवालात से पहले आपको क्या करना है? सितारों से आगे जहाँ और भी है इसको पढ़ना है और सवालात फटाफट लगाना है, ताकि आपके सवालात जल्द से जल्द हल हो सके। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, इसको लेकिन ध्यान से पढ़ना है। कनाअत न कर आलिम रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आह वो फ़ग़ां और भी है। उसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जाना, कि तेरे ज़मो मकां और भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। यानी शाही है परवाज़ है तो है तेरा काम आसमान और भी है। इसको हम लोग क्या किए हैं? नज़्म को पढ़ लिए हैं। अब डायरेक्ट हम लोग सवालात की तरफ बढ़ेंगे और इसको नज़्म को हम लोग नहीं देखेंगे। यह शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही है? ज़ब्त की इम्तिहान, इश्क की इम्तिहान। किसके दोस्तों? 115 का देखिएगा, इश्क की इम्तिहान के बारे में बात कही गई है शायर में। अगला सवालात की तरफ बढ़ते हैं। 16 सवालात की तरफ बढ़ते हैं। यानी शायर ने किस पर कनाअत न करने की बात कही है? शायर जो है किस पर कनाअत करने की बात कही है? यही आपका आलिम रंगो बू पर, आलिम रंजो गम पर, आलिम ये आपका क्या है? किस में कहा है दोस्तों? आलिम रंगो बू पर। यानी 16 का आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 का देखिएगा, शायर ने शाहीन के काम को क्या कहा है? शायर ने शाहीन के काम को क्या कहा है दोस्तों? दूसरे परिंदों से लड़ना, तन्हाई में बैठना, क्या कहा है? आप इसको देखिएगा। 17 का आंसर आपका परवाज़ करना, क्या है? परवाज़ करना कहा है। आंसर 3 आपका सही हो जाएगा। 18 का देखिएगा, शायर की इसमें उलझ कर न रहने की बात कह रहा है। सुबह शाम रंजो गम, दुख और दर्द। 18 का देखिएगा, रोज़ो शब यानी दिन और रात में उलझे नहीं रहने से मना किया है, आपका हो जाएगा। 119 देखिएगा दोस्तों, यानी अगर खो गया एक तो क्या गम, झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए।
119 का सवालात को देखिएगा, आंसर 3 आपका होगा, क्या हो जाएगा, नशीमन। क्या हो जाएगा, नशीमन। खो गया अगर एक नशीमन, वहाँ आप शायरी में पढ़कर इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल ही ईजी है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गम का गम मतलब मुतज़ात, क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, गम का क्या होगा दोस्तों, खुशी होगा, दुख हो, ये एक ही, मायूसी उदासी एक ही हुआ, ये आपका खुशी हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ तक आपका यानी सीटेट अगस्त जुलाई 2024 यानी अगस्त 2023 में जो सवालात पूछे गए थे PYQ यानी पूछे गए सवालात आप लोगों के सामने मैं रखा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यानी फर्स्ट लैंग्वेज आपका हल करवा दिया हूँ। यानी पेपर 1 देखिएगा कौन सा पेपर है, पेपर वन आपका लैंग्वेज भाषा जो है लैंग्वेज 1 भी आपका है, लैंग्वेज 2 आपका पेपर का यानी पेपर 2 का आपको हल करवा देंगे कल 121 से। आपका देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपसे गुजारिश यही करते हैं कि अगर अभी तक आपका क्या हुआ है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बहुत ही क्या हो सका दोस्तों, आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आपसे अहम गुजारिश यही है कि 1 मिनट निकाल करके आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसे लगा और आपको मैराथन की ज़रूरत है। मैराथन यानी एक मरतबा PYQ का मैराथन लगाएंगे, एक दिन आपका लगाएंगे थ्योरी का मैराथन। आप दोनों मैराथन को अटेंड कर लेते हैं तो हमारा ये कहना है, अगर मेहनत से आप कर लेते हैं दोस्तों, कम से कम 25 से ऊपर नंबर आपका आ जाएगा, 26 या 25 या 24 इतना ही नंबर आपका आने वाला है, इससे कम नहीं आएगी। लेकिन आपको जो थ्योरी और मैराथन क्लास जो हम लगाएंगे उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं।